सेंट सोल्जर टाइम्स देखने वाले सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਐਂਕਰ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਹਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਹਰ HOD ਨੂੰ, ਹਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜਬਲ टीचर मिल जाए तो उन्होंने जिंदगी सफल हो जाती है। अज जिन्ने भी कोर्सेज होंगे उन्होंने बारे जानकारी दी गई। आओ कोई देखते हैं खास इसदियां झलकियां। Respected MD sir, directors and esteemed principals and fellow teachers, a warm welcome to each one of you to our career counseling session. This ritual symbolizes the illumination of knowledge and wisdom. Into the various number of courses, fee structure and opportunities offered by our institute, I urge each of you to embrace the spirit of collaboration and open-mindedness. Aim of this session is to ensure that every aspiring student receive the guidance they need to make informed decisions about their future. So now, without further ado, I would like to invite Mr. Indrajit Singh, Director of Admissions and Corporate Relations, to come forward and present the report of previous year admissions and update on international study program with specifics to Canadian immigration. Good morning everyone, respected directors, principals and my dear friends. Indeed my pleasure to welcome you all on board for the career counseling session, where we discuss about the new courses, different policies and all about the admissions process. As you know that the admissions is quite a challenging task. It's one of the toughest process to convince someone for your institution. In today's presentation, our Managing Director Sir, Mr. Manohar Arora, will brief you about the step-by-step processes of admissions and the policies made for the students' benefit. Before I request Manohar Arora Sir to take up the session, I would like to present you a brief admissions report for the previous year. As you know, we have various number of colleges running various courses. On the basis of those courses, would like to tell you that the admissions number of the last year surpassed a whopping 5,500 plus, which is basically a record number of enrollments in the Saint Soldier history. इधर मैं अपने पूरी टीम को थैंक करना चाहूँगा, पूरे सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को थैंक करना चाहूँगा, स्पेशल मनोहर सर को, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई टुक ओवर इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई, it was really a tough thing for me. Directly getting from my international studies to the domestic part, it was quite a challenge, but under the leadership, having great management, great boss to have, all the principals, directors and all the family of Saint Soldier group of institutions, you have really, मैं simple पंजाबी च गल करा देशी भाषा च, कि तुसी मेरी इज्जत बचा ली, because it was the first time for me and it was a challenging time. Why I say this? Because I deal with international studies. Last year जो कनाडा का वीज़ा सक्सेस रेट था, जो मार्केट सिचुएशंस को देख के अगर मैं 5,500 एडमिशन्स की बात करूं तो ये बहुत बड़ा नंबर है. When we compare this same number with the competitors, जो हमारे दूसरे competitors हैं, उनके comparison में हम देखें, we have not just beaten them. हमारा टारगेट 5,000 एडमिशन्स का था, but we have surpassed that target by 500 more admissions. So this year, with more number of programs on board, so हमारा target, we have revised that target to 6,000 plus admissions for this current admission session. And to
achieve this, I would want to thank my marketing team. उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है. We have touched more than 350 plus schools. I repeat, हमने पिछले साल से बहुत सारे स्कूल्स ऐड किए अपने बकेट लिस्ट में. सिर्फ ये स्कूल्स को हमने डेटा नहीं लिया है, वहाँ जाके एक्टिव प्रेजेंटेशंस भी दी हैं. तो जो डाटा आपको मिलेगा, दैट वुड बी मच मोर सब्सटेंशियल, much more concrete and much more validated as compared to previous years, and the data count goes to as high as 25,000. So this, thank you. So this is all about the admission report. So this is all about the admission report. थोड़ी सी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा because I've been getting many calls regarding the international scenario with specifics to Canada. आप सबको पता होगा कि हमारे पास इंटरनेशनल स्टडीज प्रोग्राम है, where we offer Canadian Pathway Program with public sector universities in Canada. बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट है कि ये चेंजेस क्या क्या आए हैं, कैसे सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ये क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम को इफेक्ट करेगा. मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा. ये बेसिकली प्रॉब्लम आई है उन कॉलेजेस के ऊपर, बेसिकली जो CIC है या कैनेडियन गवर्नमेंट है, उसने अपना वीज़ा जो रेट ऑफ इशुएंस है 36% से कम कर दिया है. तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेंगे वो बच्चे होंगे जो बेसिकली 5.5 या बड़ी मुश्किल से 6 बैंड्स लेके कोई डिप्लोमा प्रोग्राम करने किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाते थे. Thank God we have on board public sector universities in Canada. These public sector universities की मैं बात करूं, these are basically funded by the Canadian government. जिनकी फंडिंग कैनेडियन गवर्नमेंट होती है तो उनका जो फीस स्ट्रक्चर भी बड़ा कंपैटिटिव होता है, और उनका अगर मैं कल को प्लेसमेंट्स की भी बात करूं या उनकी PR की पॉलिसीज करूं, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा एज और एडवांटेज मिलता है. तो आवर स्टूडेंट्स डू नॉट नीड टू वरी. एंड वन थिंग मैं अपने पूरे टीम मेंबर्स को ये बताना चाहूँगा कि सिंस 2018 जब से हमारा आर्टिकुलेशन हुआ है, वी हैव मैनेज्ड 100% ट्रांसफर रिकॉर्ड. मे बी इंडिया में, थैंक यू, मे बी इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूशन जो पाथवे प्रोग्राम वाला है, जो हमारे कंपटीशन में भी है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि वी हैव अट्रैक्टेड 100% ट्रांसफर रिकॉर्ड. थोड़ा बहुत तो क्रेडिट हमको भी जाता है भाई. भी आज तक 2018 से हमारा एक भी बच्चे की रिजेक्शन नहीं आई है और 100% ट्रांसफर्स हुए हैं, और वो बच्चे अच्छी अच्छी पोजीशंस में भी हैं व्हेन इट कम्स टू कनाडा. ठीक है जी. तो 2-3 चीज़ें जो कैनेडियन सिनेरियो में चेंज हुई हैं, एक तो जो GIC 10,000 कैनेडियन डॉलर्स था, अब वो बढ़ के 20,640 CAD हो गया है. ये मैंडेटरी है. अब कोई भी बच्चा जो कनाडा जाएगा उसके GIC अकाउंट में इंस्टेड ऑफ 10,000 कैनेडियन डॉलर्स यू नीड टू शो अप 20,640 कैनेडियन डॉलर्स. देन मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल आपको दे दूं, बहुत बड़े पंजाब के एक एजेंट हैं, उनके 7 कॉलेजेस थे कनाडा में, वो सारे कॉलेजेस बंद हो गए, और उन बच्चों के शायद आई एम नॉट वेरी श्योर कि उन बच्चे जिन्होंने फर्स्ट ईयर एडमिशन लेके अभी सेकंड ईयर में होना था, उनका फ्यूचर क्या है. बट in terms of quality of education, in terms of quality of universities which we have on board, हमारे पास 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं. वन इज़ रॉयल रोड्स यूनिवर्सिटी. It's basically based in British Columbia. I can very safely say it's like a Delhi University of Canada. साल में ये यूनिवर्सिटी सिर्फ एक इनटेक लेता है और वो क्वालिटी वाले बच्चों को लेती है. तो अगर आप हमारे पास BBA करना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म करना चाहते हैं, हमारे पास ये 3 यूनिवर्सिटी हैं जो रॉयल रोड्स, ये यूनिवर्सिटी कौन सी होगी? रॉयल रोड्स यूनिवर्सिटी. दूसरी हमारे पास कंप्यूटर साइंसेस की यूनिवर्सिटी है. उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली. अगेन इट्स बेस्ड इन ब्रिटिश कोलंबिया, एबट्सफोर्ड, जो अमेरिकन कैनेडियन बॉर्डर पे है. हमारा इस यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था, आपको पता होगा कि ये कैनेडियन अमेरिकन बॉर्डर पे है. जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उनके बाद उन्होंने क्या किया, H1B वीज़ा जो IT प्रोफेशनल्स के लिए हैं बहुत ज़्यादा कर्बिंग कर दी थी. तो जितनी IT कंग्लोमरेट्स थी उन्होंने अपने एक्सपेंशंस करने थे, अपने उनको मैन पावर चाहिए थी जो पहले वो इंडिया, पाकिस्तान या एशिया से लेते थे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या वर्ल्ड ओवर से लेते थे. जब H1B वीज़ास पे कर्बिंग हुई तो ये एडवांटेज हुआ कनाडा को. तो बहुत सारी IT इंडस्ट्री अभी एबट्सफोर्ड में शिफ्ट हुई है. तो लोग जो अमेरिकन हैं वो मॉर्निंग में US से आते हैं, कनाडा काम करके वापस चले जाते हैं.
तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी स्पेसिफिक लोकेशन में प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली हमने आर्टिकुलेशन किया है। आर्टिकुलेशन इज व्हाट इज बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके थ्रू 2 साल बच्चा हमारे पास पढ़ेगा, 3rd और 4th ईयर के लिए वो कनाडा शिफ्ट होगा। इसका एडवांटेज क्या है? जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, वन थिंग इज दैट यू आर गेटिंग इनटू अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इन कनाडा। दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि इसका फीस स्ट्रक्चर बड़ा कंपेटिटिव है। जो बच्चा शायद एक डिप्लोमा कोर्स के लिए पैसे देता है कनाडा में 2 इयर्स के एजेंट के थ्रू, उतने ही अमाउंट में हम बच्चे को डिग्री ऑफर करते हैं। पहले 2 साल यहाँ पढ़ेगा, 3rd एंड 4th ईयर ही और शी विल बी शिफ्टेड टू कनाडा, प्रोवाइडेड वो अपने आइल्स के और मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस के क्राइटेरियन को मीटअप करें। ठीक है, किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन होगा इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज और डोमेस्टिक प्रोग्राम्स, आई एम ऑलवेज देयर। अगेन एक बार मैं सबको बता दूं, बहुत लोग मुझे जानते होंगे, शायद कईयों के लिए इंटरेक्शन करने का पहला मौका होगा। माय नेम इज इंद्रजीत एंड आई बेसिकली लुक आफ्टर नॉट ओनली इंटरनेशनल स्टडीज नाउ बट ऑल्सो डोमेस्टिक एडमिशंस एज वेल एज कॉर्पोरेट रिलेशंस। सो थैंक यू सो वेरी मच। हम मिलते रहेंगे, आपको मैं तंग करता रहूँगा क्योंकि अभी हमारा मेन पीक एडमिशन सेशन शुरू होने वाला है। सो थैंक यू so very much and God bless you. Cheers. Bye. We will have the privilege of hearing our esteemed Managing Director, Professor Manhar Arora, whose leadership continues to inspire us all. So I can kindly request sir to please come forward to guide and inspire us all for the coming admission session. Good morning to all of you. आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब मेरे सामने मेरे आदरणीय, मेरे प्यारे प्रिय प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं और सारा ही मेरा जो दिल से जुड़े हुए मेरे टीचर्स साहिबान हैं, सबके सब मेरे साथ हैं और उन सबके साथ बात करने का एक मौका मिला है। मैं आप सभी का, आदरणीय डायरेक्टर्स का, आदरणीय प्रिंसिपल्स का और मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको मैं अभिनंदन करता हूँ। खास तौर से आज का जो प्रोग्राम रखा गया उसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक साथ बहुत बड़े अदारे में काम करते हैं, लेकिन वो अदारा इतना बड़ा है कि हम उसकी एक एक श्रृंखला के अंदर, एक एक पार्ट के अंदर काम करते हैं और शायद अपने को भी दूसरे कॉलेज में क्या हो रहा है उसके बारे में हम जानकारी नहीं रखते। ये जो सेशन फॉर द करियर काउंसलिंग रखा गया है, इसका बहुत बड़ा रोल है कि जब हम एक परिवार की तरह मिलजुल कर अपने आप को जानेंगे। आज का जो सिलसिला है, जो आज हम बात कर रहे हैं, ये अपने आप को जानने का है। हमारे घर में क्या है, हमारे पास कौन कौन से लोग हैं, किस तरह से वो काम करते हैं और उनसे हम किस तरह से फायदा ले सकते हैं, किस तरह से उनका पूरी तरह से उनको यूज में कर सकते हैं। इसी के लिए आज एक सेशन जो है वो रखा गया है। सबसे पहले तो मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि एक एग्जांपल मैं देता हूं। अगर कोई शादी होने वाली है किसी की, सब कुछ सेम है, लड़की है, एक की शादी, जो एक लड़की है एक XYZ बैंक, सिटीजन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में काम करती है और दूसरी जो लड़की है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या सिटी बैंक में काम करती है, तो आप कौन सी लड़की को पसंद करोगे? सब कुछ सेम है। सिटीजन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में काम करने वाली लड़की को या फिर सिटी बैंक में काम करने वाली लड़की को या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम करने वाली लड़की को? बताइए, बोलिए, आप दिल से बोलना, झूठ नहीं बोलना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वाई? क्यों? गवर्नमेंट है और दूसरा क्या कारण है कि वो बहुत बड़ी संस्था है, वो बहुत बड़ी संस्था है और जिस बड़ी संस्था में हम काम करते हैं
वहाँ पर हमें आगे बढ़ने के मौके बहुत मिलते हैं। अगर कोई छोटी संस्थान है तो वहाँ पे हमें आगे बढ़ने के मौके जो है वो कम मिलते हैं। लेकिन जहाँ पर संख्या ज़्यादा हो, संस्था बड़ी हो, वहाँ पर हमें अपनी टैलेंट दिखाने का मौका ज़रूर मिलता है, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, और हमें बहुत से और कारण मिलते हैं, क्योंकि बड़े से बड़ा होना बहुत लाजमी हो जाता है। छोटे से बड़ा भी होते हैं लेकिन उसमें समय लगता है। लेकिन आप सब लोग, मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से जुड़ा हुआ हूँ। अपने चेयरमैन श्री अनिल चोपड़ा जी और वाइस चेयरपर्सन मैडम श्रीमती संगीता चोपड़ा जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, और इस दिन ब दिन हम बड़े होते जा रहे हैं। जैसे अभी इंद्रजीत जी ने बताया कि हमने पिछले साल 5000 एडमिशन्स का टारगेट किया था, उससे पिछले साल हमने 4800 के आसपास एडमिशन्स की थी। इस बार हमने 5500 जो एडमिशन्स हैं वो की हैं, और इस बार हमने और नए कोर्सेज लिए हैं जिसके थ्रू हम और ज़्यादा एडमिशन्स करेंगे। अब बात आती है कि आप सबको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। मैंने अभी बताया आपको कि पहले तो ये जानने के लिए कि हम सब एक परिवार हैं, और इस परिवार के हिस्सा होते हुए मैं ऊपर आके आपसे बात करता हूँ। हर कॉलेज का जो कोर्सेज है, कुछ नए कोर्सेज हमने लिए हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो आप सबके पास सेंट सोल्जर टाइम्स है। ये नई सेंट सोल्जर टाइम्स मैंने बनाई है आज इस पर, और मैं बनाता तो बड़ी मेहनत से हूँ, और मुझे लगता नहीं कि कोई पढ़ता है इसको। और इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे लेटेस्ट न्यूज़ होती है। आप देखें, अगर इसके सेकंड पेज पे अगर आप देखेंगे तो जो 4 लोग जो स्पेस पे जा रहे हैं, ये वो भी न्यूज़ आ गई है, जबकि अभी आप तक पता भी नहीं होगा कि हम जो चंद्रयान पे 4 लोग जा रहे हैं। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट न्यूज़ कि 4 बंदे हमारे इंडिया के जो हैं वो जा रहे हैं। सो आई ट्राई टू गिव यू न्यू थिंग्स एवरी टाइम। लेकिन सेंट सोल्जर टाइम्स मैंने पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ आपको बैक पेज पे लेके आने के लिए कहा। आई थॉट कि आप इसको पढ़िएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब भी मौका मिले पढ़ जरूर लिया कीजिए। इसमें वर्ल्ड की न्यूज़ होती है, इसमें एशिया की न्यूज़ होती है, इसमें बिजनेस की न्यूज़ होती है, इंडिया की न्यूज़ होती है। बहुत सारी लेटेस्ट न्यूज़ में कवर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे 7th पे कमीशन है, कुछ और चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लॉ के बारे में स्टार्ट करेंगे। सेंट सोल्जर लॉ कॉलेज, जब भी कभी, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे वो मैनेजमेंट कॉलेज हो, अगर कभी कोई किसी तरह से बात करता है जी मैं लॉ करना चाहता हूँ, तो आपकी वर्डिंग क्या होनी चाहिए? लॉ वाले की भी है। हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि सेंट सोल्जर लॉ कॉलेज जो है पंजाब का एकमात्र ऐसा कॉलेज है कि जिसके अंदर ये सारे प्रोग्राम हम चला रहे हैं। अभी भी पंजाब जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है उसके अंदर अभी भी जो है BB LLB या दूसरे और प्रोग्राम पूरी तरह से नहीं चल पा रहे हैं। ये सिर्फ हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम BA LLB, BCom LLB, BB LLB ये और LLB, इसमें 2 तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं। एक 3 ईयर कोर्स होता है LLB, और एक 5 ईयर कोर्स होता है BA LLB, BB LLB और BCom LLB। जो LLB है वो 3 इयर्स की होती है। 3 इयर्स, उसमें एज की कोई सीमा नहीं है, कोई भी कभी भी कर सकता है। आर्ट्स, कॉमर्स और जो साइंस वाले हैं। BA LLB, BCom LLB और BB LLB, जो BCom LLB है जिसने +2 में कॉमर्स रखी है वो कर सकता है। BB LLB आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई भी कर सकता है। BA LLB वो जो हो कोई भी स्ट्रीम वाला है वो भी कर सकता है। तो आप ये याद रखिएगा। और ये 3 इयर्स का कोर्स जो है वो LLB आफ्टर ग्रेजुएशन है, और बाकी के जो कोर्सेज हैं वो आफ्टर +2 हैं, +2। और इसमें हम सब जो ओपन स्कूल भी है वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कई बार NIO से किए होते हैं, सो दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। लेकिन ये
भारत सरकार के किसी भी स्कूल बोर्ड के थ्रू मान्यता प्राप्त +2 हुआ हो, जिसने साइंस, मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में किया हुआ हो, वो एडमिशन ले सकता है। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हर साल लॉ कॉलेज की पोजीशंस आती हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए जब आप घर जाते हैं, सब जानें, मैं आज कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं कि जो आप अपने घर जाकर अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ये बताइए कि हमारा ग्रुप क्या है, हमारा सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्या है। इस वक्त पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा लॉ स्टूडेंट अगर है तो कहाँ है? सेंट सोल्जर में है। तो एक ताली बनती है ना, बनती है अपने लिए। पूरे पंजाब में ना नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला में इतने बच्चे हैं, ना गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में इतने बच्चे हैं, ना ही हमारे पंजाब भी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी में इतने बच्चे हैं। इसका कारण हम हैं जो एक अच्छी पढ़ाई उनको दे रहे हैं। इसके अलावा पिछले साल हमने 2 नए कोर्सेज स्टार्ट करे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं हो पाए। मैं उसको एडमिट भी करता हूँ, क्योंकि उसको हमने बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं किया। बहुत अच्छे प्रोग्राम है 2 हमने जो हाईलाइट किए। एक है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन साइबर लॉ। साइबर लॉ जो है, अगर आप देखते हैं डिजिटलाइजेशन, दुनिया का सबसे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन अगर हुआ है तो इंडिया में हुआ है। मैक्सिमम डिजिटल ट्रांजैक्शंस, 70% डिजिटल ट्रांजैक्शंस पिछले साल हमारे हिंदुस्तान में हुई हैं, पूरे वर्ल्ड की। तो इसके कारण साइबर क्राइम जो है वो भी बहुत बढ़ गया है। आपको बहुत से फ़ोन आते होंगे, हम आपको लोन दे देंगे, आपके लिए क्रेडिट कार्ड है, आपका कोई इनाम निकला है, आपके लिए कुछ हुआ है। लेकिन आज तक साइबर लॉ में ऐसा कोई जो आईपीसी कह सकते हैं, या अब जो भारतीय न्याय संहिता है, उसमें पहले कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि फ्रॉड को पकड़ा जा सकता हो या उसके ऊपर केस किया जा सकता हो। लेकिन जो अब नई भारतीय न्याय संहिता और भारतीय जो साक्ष्य संहिता आई है, उसमें हमारे प्रावधान दिए गए हैं जो साइबर फ्रॉड को पकड़ सकते हैं। नहीं तो हम सिर्फ साइबर फ्रॉड को पकड़ के उसको डांट के धमका के छोड़ देते थे, कुछ भी नहीं होता था। और इसका सीधा फायदा हमारे जो ग्रुप थे, टेररिस्ट ग्रुप थे, वो अपनाते थे। तो ये साइबर जो लॉ है, आप बच्चों को इनकरेज करिए। आफ्टर ग्रेजुएशन है ये प्रोग्राम, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। पुलिस के अंदर भी स्पेशल सेल्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, आईबीज के अंदर सेल बना चुके हैं, और सीआरपीएफ हो, चाहे आरएएफ हो, बीएसएफ हो, इन सब के पास अपने अपने जो साइबर लॉज हैं, जो साइबर डिपार्टमेंट्स हैं, वो बने हुए हैं। तो उसमें बच्चों को नौकरी वहाँ पे मिल सकती है। दूसरा प्रोग्राम बहुत बढ़िया जो है, एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पर्सोनल मैनेजमेंट। पर्सोनल मैनेजमेंट जो होता है वो आज तौर पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेज करने के लिए होता है। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे उनको हायर करना है, कैसे उनकी अप्रेजल करनी है, कैसे उनकी प्रमोशन करनी है, किस तरह से उनको ट्रांसफ़र करना है, क्या यूजेस देनी है उनको, ये सारा चीज़ें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पर्सोनल मैनेजमेंट में आता है। तो ये प्रोग्राम भी हमारे लॉ कॉलेज के अंदर चलता है, और आप इसको लोगों को बता सकते हैं कि ये वाला प्रोग्राम भी हमारे पास है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपने सारे कोर्सेज बताने हैं हर एक को। ये नहीं कि उसने कहा कि मैंने एमबीए करना है तो उसके बाद आपने छोड़ देना है उसको। तो आप उससे पूछें कि आप क्या करना चाहते हो, कौन सा कोर्स करना चाहते हो, फिर हम वो वाला कोर्स उनको बताते हैं। अब दूसरी तरफ मैं कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ चलता हूँ। कॉलेज ऑफ एजुकेशन हमारा एक ऐसा कॉलेज है जिसके अंदर आज भी हमारी 200 सीटें हैं बीएड के अंदर, और 200 की 200 सीट हमारी भरी हुई है। एक बार मैडम के लिए भी जोर से ताली होनी चाहिए। और इनकी जो बीपीएड और डीपीएड है, फर्स्ट से लेकर 10 तक, यकीन मानिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, 10th सारी पोजीशन हमारी होती है, सारी सेंट सोल्जर कॉलेज ऑफ एजुकेशन की होती है। तो
इनके जो प्रोग्राम चलते हैं, बीएड प्रोग्राम जो है वो 2 साल का है, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ये 5 साल का हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा ये, लेकिन अभी भी ये 2 साल का प्रोग्राम है। बीएड के अलावा इनका डीएलएड प्रोग्राम आता है, डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो भी आपका, ये सारे जो कोर्सेज हैं, बीएड जो है वो ग्रेजुएशन के बाद है, डीएलएड जो है +2 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद है। इसी तरह से बीपीएस, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स जो है आपका, ये भी आपका ये +2 के बाद आता है। ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जिसको करने के बाद आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अंदर आप चले जा सकते हैं। इसी तरह से आपका डीपीएड है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हमारे पास हैं, डीपीएड है, बीपीएड है, बीपीएस है, डीएलएड है, ये सारे प्रोग्राम्स हमारे कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आते हैं। तो कोई भी कोर्स ही करना चाहता है जो टीचर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड, वो हमारे पास आते हैं। इसी तरीके से मैं बात करना चाहूँगा इंजीनियरिंग कॉलेज की। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि पिछली बार से इनकी जो एडमिशन्स पिछले साल अगर 60% 65% हुई थी, तो इस बार इनकी एडमिशन जो है 85% हुई है। तो एक बार इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां, क्योंकि इन्होंने भी अपनी एडमिशन्स को इम्प्रूव किया। और इसके साथ इनके पास जो प्रोग्राम्स आते हैं इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसको मैं आपको सबको मालूम है, जो मैकेनिकल, जो जैसे कार्स बनती हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनरीज बनती हैं, या वो कोई भी किसी किस्म का कोई भी औजार वगैरह बनते हैं, मैकेनिकल पार्ट जो भी कोई चीज़ें होती है वो मैकेनिकल इंजीनियर से बनाई जाती हैं। सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग जो आप देख रहे हो इस वक्त सबसे बड़ा रोड नेटवर्क, 38 किलोमीटर रोज हमारे भारत में रोड बन रही है, 38 किलोमीटर रोज। तो उसमें देखिए कितने सिविल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जो उनका घर योजना है, उसके अंदर भी करोड़ों मकान बन रहे हैं, उसके अंदर भी हमारे को सिविल इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये सिविल इंजीनियरिंग भी प्रोग्राम बहुत बढ़िया चलेगा। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप जानते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, टूल इंजीनियरिंग है, और एक BWOC हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग है। BWOC हार्डवेयर नेटवर्किंग, इसकी मैं खासियत बताना चाहूँगा। जो BWOC है, BWOC हार्डवेयर नेटवर्किंग में कईयों को शायद पसंद ना आए, सुनना पड़ेगा आपको, कि वासिया ना मारें, आप सुनते रहिए क्योंकि आपके मतलब की चीज़ बता रहा हूँ मैं। BWOC जो है एक वोकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इसमें बच्चा 1 साल के बाद अगर ड्रॉप आउट होता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है, अगर 2 साल बाद छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा मिलता है, अगर वो तीसरे बार पूरा कर लेता है तो उसको डिग्री मिल जाती है। सो BWOC हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम में है, इंजीनियरिंग कॉलेज में है, जिसके थ्रू हम पूरी हार्डवेयर को, कंप्यूटर कैसे बनता है, कंप्यूटर की चिप कैसे बनती है, कंप्यूटर्स को रिपेयर कैसे किया जाता है, कंप्यूटर की जो बगिंग है किस तरह से फिक्स की जाती है, ये सारी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाई जाती है। इसी तरीके से अगर मैं अब होटल मैनेजमेंट की बात करता हूँ, होटल मैनेजमेंट की सबसे पहली खासियत तो ये है कि होटल मैनेजमेंट के अब तक जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे प्लेस्ड हैं, 100% प्लेसमेंट है सारे स्टूडेंट्स। और अभी अभी कुछ बच्चों ने अपनी अपनी योग्यता दी है, अपनी अपनी पहचान दी है, बहुत से फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं। तो इनके पास जो प्रोग्राम्स हैं वो हैं +2 के बाद सारे प्रोग्राम्स हैं इनके भी, और इनके कोर्सेज में +2 के बाद कोई भी चाहे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कुछ भी किया हुआ हो वो आप एलिजिबल उसमें हो सकता है। जैसे कि BSc होटल एंड हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका प्रोग्राम है जो हमारे इग्नऊ के साथ जुड़ा हुआ है। BSc होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, MSc होटल मैनेजमेंट, BHMCT बैचलर इन होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी, और ITI जो है 1 साल का कोर्स है। ये बहुत सारे बच्चे आपसे पूछेंगे जो बाहर जाना चाहते हैं
कि हमें 1 साल का कोर्स चाहिए कि जिससे हम करने के बाद हम बाहर जा सकते हों, तो कोई हो उसको ये कोर्स जरूर बताइए आप। 1 साल का कोर्स, कोई बाहर जाना चाहता हो, किसी ने भी बाहर जाना हो, चाहे आपका बच्चा हो चाहे आपका रिश्तेदार हो, मैं कह रहा हूं आपको उसको 1 साल का कोर्स कराइए। कनाडा के अंदर, पोलैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर 1 साल का जिसने ये किया हुआ है उसको जॉब मिल जाती है, ITA का ये वाला। सो दिस इज अ वेरी वेरी जो इफेक्टिव प्रोग्राम 1 साल का जो चलता है। और इसी के साथ जो होटल मैनेजमेंट है, अगर आप देखें तो होटल मैनेजमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा बड़ी है। होटल मैनेजमेंट की डिमांड बहुत बड़ी है। जिस तरह से कोविड के बाद पैरामेडिकल साइंसेज की डिमांड बढ़ी है, उसी तरह से कोविड के बाद होटल मैनेजमेंट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। होटल मैनेजमेंट की डिमांड क्यों बढ़ी है? क्योंकि हमारा टूरिज्म बहुत डेवलप हो गया है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, शायद आप जानते भी होंगे, अमृतसर हमारा टूरिज्म का गढ़ है, जहाँ पे हमारे श्री दरबार साहब है, दुर्गियाना मंदिर है, जलियांवाला बाग है, हमारा बागा बॉर्डर है, रविदास जी का जो स्थान है, राम तीरथ जी है, वो वहाँ पर वाल्मीकि जी का जो स्थान है। तो उनके टूरिज्म के लिए इतने वहाँ पे होटल्स बन गए, वहाँ का जो रश हो जाता है वो उसका ओवरफ्लो हमारे जलंधर में आता है। आप यकीन करते हैं या मान सकते हैं? वहां से लोग जो अमृतसर रहते हैं, अमृतसर देखने आए हैं, वो जलंधर हमारे होटल में आके रहते हैं, सुबह फिर चले जाते हैं। इस तरह की डिमांड है पूरे होटल के अंदर। तो होटल मैनेजमेंट एक प्रोग्राम ऐसा है जो आपको सीधा रोजगार दे रहा है, और हमारे पास सेंट सोल्जर के पास सारी यही प्रोग्राम्स हैं जो हम हमेशा से बच्चों को देते हैं ताकि उनकी रोजगार निकल सकता हुआ हो, और प्लेसमेंट्स की असिस्टेंस हम हमेशा देते ही देते हैं उसको। अब अगर मैं पॉलिटेक्निक की बात करता हूँ, पॉलिटेक्निक हमारे पास 2 पॉलिटेक्निक हैं, और दोनों की मैं बात करता हूँ, दोनों को ही तारीफ करना चाहूँगा कि इस साल इन्होंने अपने पिछले बार से ज़्यादा 30% ज़्यादा एडमिशन्स करी हैं। जलंधर ने भी 30% से ज़्यादा एडमिशन्स करी हैं, और चब्बेवाल ने भी 30% से ज़्यादा एडमिशन्स करी हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और इस बार हमने जो मैकेनिकल इंजीनियर इसमें डिप्लोमा इन मैकाट्रॉनिक्स जो है वो नया लिया है। इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको, मैकाट्रॉनिक्स क्या होता है। किसी को पता है मैकाट्रॉनिक्स क्या होता है? जो पढ़ाता है उसको तो पता होगा, जो बाकी हैं उनको नहीं पता होगा शायद। मैकाट्रॉनिक्स आजकल जो दिन चल रहे हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका बिल्कुल सीधा एग्जांपल मैं आपके वॉशिंग मशीन को दे सकता हूँ। वॉशिंग मशीन जो आपकी है दैट इज मैकाट्रॉनिक्स। वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक भी आती है, सेमी ऑटोमेटिक भी आती है। आप उसमें अगर आप डालते हो, उसमें नंबर्स डालते हो, किस तरह का सिंथेटिक कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, कितना वेट है, क्या नहीं है, और उसके अंदर जो पार्ट्स लगे हैं, उसके अंदर मोटर लगी हुई है, वो उसके अकॉर्डिंग घूमती है। सो दैट इज दी मैकाट्रॉनिक्स। कार्स आपकी जितनी भी हैं, आपकी मोबाइल फोन्स जितने भी हैं, दे आर ऑल मैकाट्रॉनिक्स। तो ये एक नया फील्ड है, बच्चों को आप प्रमोट करें जो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दोनों को करने में महारत आपकी हासिल करता है। इसी के साथ हमने डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप भी लिया है। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप में क्या होता है कि इसमें हम अपने मैप्स बना सकते हैं, डिजाइन्स बना सकते हैं, लेआउट्स बना सकते हैं। जिसने बिल्डिंग बनानी है, कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है, रोड डेवलप करनी है, ब्रिजेस डेवलप करने हैं, कुछ प्रोग्राम आप जानते हैं, मैं उनको नहीं ज़्यादा बताऊंगा, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, और सिविल इंजीनियरिंग है। और ये सारे प्रोग्राम जो है 10th के बाद हैं, मैट्रिक के बाद, 10वीं के बाद इनकी एलिजिबिलिटी बनती है। और अगर किसी ने 10+2 नॉन मेडिकल किया हुआ है, अगर किसी ने 10+2 नॉन मेडिकल किया हुआ है, तो वो सीधा दूसरे साल में, यानी कि एक प्रोग्राम जो है 3 साल का है, लेकिन वो दूसरे साल में दाखिला ले सकता है। किसी स्टूडेंट ने 10+2 नॉन मेडिकल किया है, वो डिप्लोमा प्रोग्राम के दूसरे सेक्शन में सीधी आ सकता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को?
तो ये उसके लिए सिर्फ 2 साल रह जाएंगे, क्योंकि 2 साल वो पहले पढ़ चुका हुआ है। इसी तरीके से जो इंजीनियरिंग वाले हैं, जिसने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर लिया, वो डिप्लोमा करने के बाद बीटेक के दूसरे साल में आ सकता है। बीटेक 4 साल की होती है और वो बीटेक के दूसरे साल में आता है। तो जो डिप्लोमा कर रखा है जिसने, उसके लिए सिर्फ 3 साल की इंजीनियरिंग रह जाएगी। फिर ये एक फायदा है। और इसी तरह से आईटीआई को मैं इसी साथ जोड़ूंगा। जिसने आईटीआई किया हुआ है, आईटीआई के बारे में बताऊंगा, 10वीं के बाद आईटीआई होती है। जिसने आईटीआई का 1 साल का कोर्स किया, जैसे मैंने होटल मैनेजमेंट की बात बताई, वो सीधा दूसरे साल में हमारे पॉलिटेक्निक के कोर्स डिप्लोमा में आ सकता है। लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो आईटीआई का डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए। अगर वो आईटीआई का डिप्लोमा 2 साल का है तो वो दूसरे साल में पॉलिटेक्निक के आ सकता है। तो ये जो मैकेनिकल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बारे में मैं जो बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड है। और आप सबके लिए एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, होशियारपुर चब्बेवाल में हरजीत जी बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर साहब कृपाल जी बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। आपको फोकस जरूर करना है जो बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि कनाडा ने इस वक्त सख्ती कर दी हुई है कि कितने बच्चे चाहिए कितने नहीं चाहिए, उनको स्किल्ड मैन चाहिए। तो अगर जिसके पास ये डिप्लोमा होगा 2 साल का, वो 3 साल का डिप्लोमा होगा, वो उसके लिए एलिजिबल है पीआरशिप के लिए एलिजिबल है। तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं कि आप ये वाला प्रोग्राम करिए, ताकि आपको वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जरूर आपने उनको बताना है कि 10th के बाद, चाहे वो +2 के बाद हो, 3 साल का डिग्री वो कर सकता है। अब मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की। मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के सबसे पहले मैं मिट्ठू बस्ती की बात करता हूँ। डॉक्टर रोहन को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने भी इस साल, इनके बच्चे इस बार 850 से ऊपर स्टूडेंट इनके पास हो गया है जी। जो पहले 780 के आसपास था, इस बार 850 के आसपास स्टूडेंट हैं इनके पास। और अभी भी इन्होंने कन्वोकेशन भी करवाई। इनकी सीट सारी फुल रहती हैं, एमबीए की सीट फुल रहती हैं, बीबीए बीसीए फुल रहती है, एमएससी एमएलएस फुल रहता है। तो इनके पास कौन कौन से कोर्स ही मैं बताता हूँ आपको, ताकि आपको मालूम हो कि कई बच्चे जब आप फ़ोन करते हैं तो कहते हैं जी हमें दूर पड़ता है या बस पकड़नी पड़ती है। तो इनका कॉलेज जो है वो सेंट्रलाइज प्लेस पे है। सेंट्रलाइज प्लेस होने के बाद, जैसे मिट्ठू बस्ती है, सबसे पहले इनके पास जो मास्टर्स के जो प्रोग्राम है वो है एमबीए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। ग्रेजुएशन के बाद, और इसके बाद होता है एमसीए पहले 3 साल की होती थी, अब 2 साल की हो गई है। आप सब याद रखिएगा, एमसीए पहले 3 साल की थी, अब 2 साल की हो गई है। लेकिन कईयों के दिमाग में, दिल में अभी भी ऐसा ही है कि एमसीए 3 साल की है। इसलिए कई बच्चे जो हैं एमएससी आईटी या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस की ओर भागते हैं। उनको लगता है कि एमसीए जो है वो 3 साल की है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पास एमसीए है वो 2 साल की है। इसके अलावा हमने जो मास्टर्स इन मास कॉम एंड जर्नलिज्म, भी हमारे पास है मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर, और शीघ्र ही हम उसमें दोबारा इस साल हमने एडमिशन उसमें हम लेने शुरू करेंगे। और मास्टर इन मास कॉम जर्नलिज्म भी बहुत से कम कॉलेजेस हैं जिनके पास है। हमारा स्टूडियो आप जानते हैं, सेंट सोल्जर टाइम्स का स्टूडियो बहुत बढ़िया बना हुआ है, ए क्लास है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें। आप उसमें कभी भी, मैं चाहूँगा सारे प्रिंसिपल साहिबान को, प्लीज़ आप कभी ना कभी अपने टीचर्स को एक बार वहाँ लेके जाएं, एक बार दिखाएं, एक बार राउंड लगाएं। और अगर आए हुए हैं यहाँ पे सेंट सोल्जर टाइम्स से बेटे, तो एक बार सबको एक बार दिखाइएगा सारे जो भी हमारा कैंपस बना हुआ है। इसके अलावा इनके पास बीबीए है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है मैनेजमेंट कॉलेज में, जो कि +2 आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी साथ हो सकता है। बीसीए है, वो भी किसी के साथ कर सकते हैं। बीएससी एमएलएस है, मेडिकल लैब साइंसेस। मेडिकल लैब साइंसेस है मतलब मेरा ये है कि जब आप किसी भी तरीके से कोई भी टेस्टिंग करते हैं, चाहे वो ब्लड ग्रुप है, चाहे वो यूरिन है, चाहे वो कुछ स्पुटनिक है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हैं जो आपको टेस्टिंग के लिए की जाती हैं, वो आपको एमएलएस में सिखाई जाती हैं। इंजेक्शंस कैसे लगते हैं, इसकी बहुत बड़ी डिमांड है।
इसकी डिमांड का सिर्फ आपको एक उदाहरण दूंगा मैं। आप कभी भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, कभी किसी साथी को, किसी रिश्तेदार को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तो जाते हैं डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले वो क्या कहता है, टेस्ट कराइए। जो टेस्ट करता है वो MLS वाला है, आप समझे। कुछ भी हो जाए, कोई भी मरीज बन जाए, उसको टेस्ट कराना ही पड़ेगा। इसके लिए हमारा BSc MLS प्रोग्राम बहुत अच्छा चलता है। हमें 60 सीटें हमारे पास हैं, लेकिन हमारे पास 100 से ज़्यादा नंबर ऑफ लोग आ जाते हैं। वही MLS हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी है। मैं सबको बताना चाहूँगा, BSc MLS जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में भी है और मिट्ठू बस्ती में भी है। और इसके अलावा MSc भी हमारे पास है, मास्टर्स इन मेडिकल लैब साइंसेज भी हमारे पास है। और वो 2 तरीके की है, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, उस दोनों में फ़र्क क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ आपको। माइक्रोबायोलॉजी जो होती है वो बिल्कुल ही जो बारीक सूक्ष्म तरीके से जो होते हैं वो करने के लिए वो है, जैसे वायरसेस हैं, जैसे भी कोरोना आया था वायरसेस, उन वायरसेस को जो स्टडी करते हैं वो उसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और बायोकेमिस्ट्री जो है वो दूसरे सेल्स के बारे में जो स्टडी होती है उसको करवाया जाता है। ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो हमारे पास दोनों हैं, हमारे पास MSc बायोकेमिस्ट्री भी है और MSc माइक्रोबायोलॉजी भी है। ठीक है जी। तो ये मैनेजमेंट कॉलेज, और इसके साथ हमारा सेंट सोल्जर बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर हम कैनेडियन पाथवे प्रोग्राम भी चलाते हैं। उसके अंदर BBA भी है, BCA भी है, मास कॉम जर्नलिज्म भी है और फैशन डिज़ाइनिंग भी है। और मैनेजमेंट कॉलेज में मैं पहले बता चुका हूँ, उसमें भी आपके पास फैशन डिज़ाइनिंग है। आपके पास सारे कोर्सेज लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, उस पर आप पैरामेडिकल के ऊपर अगर आप आएँ, जो मेरा मेन मोटिव है, इसको इस बार हमने प्रमोट करना है। बाकी तो आप सब कुछ जानते ही हैं। आर्किटेक्चर के बारे में बताऊँगा और पैरामेडिकल के बारे में बताऊँगा। इस बार हमने पैरामेडिकल में जैसे हमारे पास BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये हमने कोर्स लिया है। अब आप देखते हैं ऑपरेशन करने वाला तो डॉक्टर होता है, लेकिन कभी कभार आपने फिल्मों में देखा होगा कि आसपास बहुत से लोग खड़े होते हैं ऑपरेशन की मदद करने के लिए, कोई सीजर पकड़ाने के लिए, कुछ करने के लिए। तो ये जो कोर्स है उनके लिए है, BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। एक है BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जो है, आप जानते हैं कि जब कोई ऑपरेशन करना होता है तो उसको थोड़ा सा बेहोश किया जाता है। देयर इज अ पार्शियल एनेस्थीसिया कहते हैं या फुल एनेस्थीसिया कहते हैं उसको। तो ये चीज़ें आपको उस कोर्स में सिखाई जाती हैं। मैं फिर कहूँगा आप सुनिए और देखिए कि कितने बड़े बड़े प्रोग्राम हमारे पास हैं। ये शायद आपको साउथ इंडिया या किसी यूनिवर्सिटी में मिलते होंगे जो हमारे सेंट सोल्जर के पास हैं, और हम उनको जानते नहीं हैं। ये हमारे पास अवेलेबल है। हम सिर्फ मेडिकल जो स्टूडेंट आता है उसको सिर्फ MBBS या BDS तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन आपके पास जिन्होंने ये मेडिकल कर रखा है, मेडिकल के लिए BSc आपकी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ BSc रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BSc रेडियोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी में इमेजिंग टेक्नोलॉजी में क्या है, जिसमें एक्सरे किया जाता है। एक्सरे कराने की मशीन भी हमारे पास है। रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, रेडियो जो इसमें हम पूरी एक स्क्रीनिंग करते हैं, एक्सरे करते हैं, हम अपने बच्चों को ये वाला कोर्स भी कराते हैं। इस साल हमने 3 और नए कोर्सेज लिए हैं। BSc कार्डियो केयर, जो दिल की रक्षा के लिए है, दिल की जो मर्ज वगैरह होते हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, उनको यूज़ करने के लिए उसको यूज़ करते हैं हम, BSc कार्डियो केयर। दूसरा कोर्स हमने लिया है BSc ऑप्टोमेट्री, BSc ऑप्टोमेट्री जो आंखों के लिए है, जो हमारी आंखें चेक करते हैं, उनके लिए हमने ये कोर्स जो है वो शुरू किया है। और तीसरा कोर्स लिया है BWalk चाइल्ड केयर। BWalk चाइल्ड केयर के बारे में भी बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारी डिमांड है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे दुबई, कुवैत, कतर
जितने लोग हैं ये वहाँ पे चाइल्ड केयर की ज़रूरत है, और इवन यूके के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसके पास ये डिग्री की हो, जिसको हम नैनी कहते हैं। शायद आपको याद हो, इसको कोर्स को हम नैनी कहते हैं, लेकिन नैनी को स्ट्रक्चर्ड रूप, उसका स्ट्रक्चर्ड रूप देके हमने बी वॉक चाइल्ड केयर का नाम लिया है। तो इसका भी वही चीज़ है, बी वॉक एक डिग्री 1 साल का छोड़ता है तो सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल छोड़ता है तो 2 साल डिप्लोमा मिलेगा, तीसरा छोड़ता है तो फिर डिग्री मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसी तरह से मैं आर्किटेक्चर की ओर आता हूँ। आर्किटेक्चर हमारे इस बार हमने 2 आर्किटेक्चर के प्रोग्राम और लिए हैं। एक तो बी आर्क है और एक दूसरा बीएससी इंटीरियर टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइनिंग, सॉरी, बीएससी इंटीरियर डिजाइनिंग और बी वॉक इंटीरियर डिजाइनिंग। 2 ये नए और प्रोग्राम्स हमने लिए हैं करने के लिए। ये सारे बीएससी इंटीरियर डिजाइनिंग का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अगर मैं दानिशमंदा की बात करता हूँ और हदियाबाद की बात करता हूँ, इन कॉलेजेस ने अपने अपने दम के ऊपर रखकर इस साल बहुत सारी एडमिशन्स की है। सुनील जी के लिए भी एक बार बधाई होनी चाहिए, इन्होंने आके संभाला है उसको। और मंजू मैडम के लिए खास तौर से एक बार, क्योंकि इन्होंने बहुत ही मुश्किल समय से अपने कॉलेज को निकाला है और सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं ये सारा कुछ करते हुए। मेरे सारे प्रिंसिपल्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। डॉक्टर अमरपाल जी की जो मैं बात खासियत करता हूँ, इनकी सारी सीट्स फुल हैं, सारी सीट्स फुल हैं जी, इनकी कोई सीट खाली नहीं है। ये छोड़ के जाता भी तो उसको भी पकड़ लेते हैं। जो हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें हमारे बीए प्रोग्राम चलते हैं, बीकॉम प्रोग्राम चलते हैं, बीसीए प्रोग्राम चलते हैं, पीजीडीसीए चलता है, बीएससी इकोनॉमिक्स है, बीएससी मैकेनिकल है। ये सेंट सोल्जर टाइम्स और जो फीस स्ट्रक्चर है एक जैसा होना चाहिए, ये सब एक जैसी जुबान बोलनी चाहिए इनकी, ठीक है? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? ऑल गुड? Or a representative from the same college can come forward and collect the data. So to begin with, may I request Dr. Subhash Chandra Sharma, Principal of Law College, to come forward and collect the database. Next, Now I request Dr. Alka Gupta ma'am, Principal of Education College, to come forward to collect the data. Dr. Gurpreet Singh, Principal of Engineering, please come forward and collect the data. Dr. Amarpal Singh, Principal of Pharmacy College, please come forward to collect the data. Dr. Sandeep Lohani, Principal of Hotel Management College. Dr. Simranjeet Singh, Principal of Business Management and Agriculture College. Dr. Kirpal Singh Kullar, Principal of Polytechnical College. Mrs. Vishali Ma'am, Principal, Architecture College. Dr. Rohan Sharma, Principal of Mithubasti College. I request Dr. Sunil, Principal of Danishmanda College. Dr. Manju, Principal of Hadiabad College. Engineer Harjeet Singh, Principal Chabbewal College. I'll be failing in my duties if I
I'll not praise the team of admissions, Department of Admissions and Career Counselor, Shri Inderjeet Singh ji, Dr. Inderpal ji, Mr. Ajay Kapoor, Sarabjit Kaur and Gurpreet also, for making this thing happen. जिन्ना भी तुसी आज काम देखे है सारा कुछ data maintenance, compilation, collection of data, disaggregation, this is all has been done by these people. So I need एक बारी इन्हां वास्ते जरूर तालियां बजा दी जाए. सवेरे 6 बजे निकल जाते सी घरों है, 6 बजे सवेरे स्कूल 8 बजे पहुंचना, 8 बजे तो जाके प्रेजेंटेशन देनियां सारा कुछ करना. So they have done a good job. I am proud of you, my dear. Thank you so much. और एक अमरपाल जी दे वालों सीगा कि जो B फार्मेसी, D फार्मेसी, +2 या नॉन मेडिकल मेडिकल दोनों कोई भी कर सकता है. So this is up to you. So you can ask anyone any question anytime. Thank you, sir. Now, to reinstate the point MD sir made, I would like to say, just like flowers, we are branches of a tree. We are all interconnected, and it's our collective responsibility to ensure that every student receives the guidance they deserve to navigate the admission process seamlessly and to flourish in their chosen path. Now, to conclude, I would like to take a moment to extend our heartfelt gratitude to the Principal of Law College for graciously allowing us to utilize their auditorium for today's event. Thank you, sir. And with that, I invite Dr. Subhash Chandra Sharma to come forward and deliver a vote of thanks. Good afternoon. बुझ गए होने ही इतना कितना गुड आफ्टरनून. यस आज तो इंसेंटिव भी नाल कहता देने तुहानू. सब तो पहला तो मैं धन्नवादी हाँ मैनेजिंग डायरैक्टर साहब का, जिन्हों ने अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी इन्ना वधिया मेहनत करके ते इन्हें लैबोरेटरी मतलब साडे नाल इनफॉर्मेशन शेयर की है. ये जिहड़ा अज दा इवेंट है उहदे च मतलब कि मैं अपने वर्दी चेयरमैन साहब का, मैडम का भी धन्नवादी हाँ. एक नवी शुरुआत हुई. ये अज तक जिहड़ा ना इस तरह ही सीगा ते उहदे नाल कई एम्बिगुइटीज़, कई कंट्राडिक्शंस भी इवन हुंदियां सीगियां भी वो जी इनफॉर्मेशन सेंटर ये कहता है, दूजा कॉलेज आ करता है, वो दूजे चाहे जी इस तरह है, साडे क्यों नहीं है. तो अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी जिहड़ी ते क्लैरिटी रिक्वायर्ड सीगी वो इहदे नाल पूरी होएगी. ये साड़ी फैलो फीलिंग भी मतलब बिल्कुल वधी अज के फंक्शन के नाल भई असी एक ग्रुप के हाँ, एक फैमिली का मैंबर हाँ. वो भी वो भी मतलब जी ना एक दूजे जानते हैं. बड़ी मतलब कि एमडी साहब ने जी गल कही बिल्कुल ठीक है भई वो जोड़ा है मतलब नहीं सी हुंदा. जदों असीं कहने ना वध तो वध ये हुंदा सी कि हाँ एजुकेशन कॉलेज वाला मैंने कल ही मतलब कि एक आया फोन जां किसी फार्मेसी का आया जां दूजे का आउंदा है, उन्होंने कहने तो नंबर देना. ठीक है ना, अपने आप असी नहीं सी कहते भी लिया भी एडमिशन करनी है ये कर लेने इस तरह करते हैं, वो करते सी. पिछले असी ये सिस्टम अडॉप्ट किया भी डाटा के विचों जी वो इनफॉर्मेशन असी जी वो मतलब कि पास ऑन करिए दूजिया जोड़े कोई इंटरस्टड ने इन्ना सी. सीधा यह भी असी अपने आप ही जिम्मेवारी लैके कहना मैं तेरी एडमिशन करा के लिया. ये पहली बारी शुरुआत हुई है. तो मैं समझदा भी यदा जो टारगेट रखा है 500 एडमिशन अगे वधाई है, ये ज़्यादा वधेगी वो इट विल बी ए बिग मतलब बूस्ट फॉर इट. दूजा मैं इस गल का भी मतलब धन्नवादी हाँ तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ कि अज इस इंटरस्ट के नाल आपां ये सुनिया तो ये जी नवी शुरुआत हुई है वो मतलब इट विल पे दी डिविडेंड होपफुली तो वो आप चंगे रिजल्ट निकलणगे. थोड़िया बहुतियां गल्लां अजे मतलब कि होर भी मतलब करने वाली मैं एमडी साहब नूं मतलब कल रिक्वेस्ट भी की सीगी भी एक तो ये जिहड़ा हैगा है जी तुहाडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ जिहड़ा तुसीं दिता बना के सेंट सोल्जर टाइम्स दे विच भी ते जिहड़ा मतलब कि एक बना के दित्ती है कोर्सेस दी. मेरी एक रिक्वेस्ट है भी एक नवा एक होर बनवा दिओ छोटा जिस कॉलेज वाइज हो, क्योंकि बहुत सारे ना साडे वाला हुण जिवें लॉ दा ठीक है, बाकियां दा कईयां दा हैगा कोर्सेस जिहड़े आ वो मतलब कि होए गए जिवें इंजीनियरिंग का है, दूजियां दा वो मतलब मैनेजमेंट एक थां इकट्ठा चले गया, वो चले गया सीधा कॉलेज का आ जाए भी ये कॉलेज दे विच है
कॉलेज का प्रिंसीपल का डायरैक्टर कौन है, उसका टैलीफोन नंबर, एक मेरी बेनती है भी ये कर लिया जाए, और आपको यूजफुल रहेगा वो मतलब कि आए। हाँ, दूजी बेनती ये है भी वो जोड़ा मैं बेनती की सी भी ये जोड़ा है अपना SC ST वाला, वो जे तुसीं क्लीयर कर दिता, बहुत मेहरबानी तुहाडी। दूजी ये जिहड़ियां आपस जिहड़ियां क्वालिफिकेशनस ने वो मतलब कि हैगियां, मैं अपने वाले क्लीयर करूँगा। लॉ के कोर्स दे विच जी एक सर ये है जिहड़ा ते BBA LLB कोर्स है साडे कोल, वो पंजाब च कल्लियां साडे कोल ही है, होर किते नहीं हैगा। तो दूजी गल ये है भी वो एनी जोड़ा +2 है किसी स्ट्रीम का भी वो दाखिल हो सकता है। BCom LLB दे विच जिहड़ा है वो मतलब कि है कमर्स सर ने कहा सीगा तुसीं सानूं लॉ कॉलेज दे विच इत्थे आके मौका दिता है, सानूं भी लगता भी साडा परिवार वड्डा है तो असीं उस परिवार के हिस्सेदार हैं। तो ये एक बारी फिर विच विचाले भी लोड़ पैगी तो एक मतलब रिव्यू मीटिंग भी हो सकती है। तो वो बाद जी एक सैलीब्रेशन का टाइप मतलब MD साहब ने रिक्वेस्ट करता इन्होंने थ्रू चेयरमैन साहब को, तो अगली बार जो एडमिशन चंगी होगी ना सैलीब्रेशन भी करनी इस तरह की उमम आके, तो होपफुली लैट्स स्टार्ट मतलब विद ऑल विगर विद ऑल मतलब कि झील तो हार्ड वर्क के नाल आप चंगे रिजल्ट लैके आईए। तो वो एक गल का मान है आपू कि सेंट सोल्जर जोड़ा ग्रुप है सब तो बड़ा ग्रुप है, आने वाले समय क्वालिटी के पक्षों भी और शाइन करेगा। तो ये जोड़ा है आप मतलब एक गल मैं हमेशा कहना ना साढ़े इतने लॉ कॉलेज जो मैं आया चेयरमैन साहब एक बार मैंने कहते तुसीं की कीता, मैं कही सब तो पहले दिन मैं ये गल कही सी अपने स्टाफ नूं भी अपनी वडियाई आप करो। साडे सब तो बड़ा ना एक नुकसे आ भी साडे घरां च वेख लीए दूजियां च वेख लीए अपने बच्चों की गल करिए लोकी गुआढ़ी या रिश्तेदार तो तुहानूं अगे ही माड़ा कहण नूं तैयार बैठे हुंदे आ। ओही दैट सेम अप्लाइज टू योर इंस्टीट्यूशन आल्सो। असीं जो आप ही कहने साडे कुछ नहीं जी उत्थे तो कुछ ना इत्थे मिलदा नहीं जी उत्थे कुछ नहीं है, ये अपनी अंदर की गल है। बाहर जो किसी ग्रुप नाल किसी मतलब बंदे नाल गल करते हैं किसी कॉलेज के नाल गल करते हैं उन्होंने हमेशा मतलब अपनी वडियाई करो, अपने पॉजिटिव पॉइंट दसो, वो जोड़ा है वो जी मतलब लोग तुहानूं चंगा तां कहण लगदे आ। मैं नाल एक बेनती होर करूँगा भी वो जी अपनी साडी इज्जत हुंदी है ना कि मतलब कि सैलरी दे नाल नहीं हुंदी या पोजीशन के नाल भी नहीं हुंदी, जिहड़े ग्रुप च तुसीं काम करदे जे वो जिहड़ी इंस्टीट्यूशन च काम करदे उहदे नाल भी तुहाडा स्टेटस वधदा है। हुण वो सेम सैलरी साडे नालों वध कोई लैंदा होवे जिहड़ा कोई IIT दे विच काम करेगा उसका नैचुरली स्टेटस हुंदा IIT प्रोफैसर है, तनख्वाह तो उत्थे भी जिहड़े स्केल जिहड़े दूजे यूनीवर्सिटीज़ दे विच ने उही उत्थे स्केल ने, पर IIT इंजॉयज ए बैटर स्टेटस। इस तरह IIM दे विच होएगा उसका स्टेटस है, पर स्टेट यूनीवर्सिटी काम करता वो स्टेटस है। इसे करके ये है जो आप इन्ने बड़े ग्रुप के जिदी इंस्टीट्यूशन का आप इमेज चंगा बनावांगे, ग्रुप का अच्छा इमेज बनावांगे, जो वो काम करांगे वो साडी भी इज्जत बढ़ेगी, ग्रुप की भी इज्जत बढ़ेगी, तो सारे रल के जी वो असीं आपां कर सकांगे। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ, MD साहब का खास धन्यवाद। स्पोर्ट एक्टिविटी अज डायरैक्टर साहब ने क्योंकि एडमिशन नहीं करनी आए नहीं स्पोर्ट्स वाले, बड़ा वधिया ये भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव सीगा, एक हफ्ता वेखो निकलिया है, लगता है भी मतलब कि सेंट सोल्जर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हैगी तो लोग हैरान हो जाते हैं जो मतलब कई दिन ना साडे स्विमिंग पूल भी है, साडे इंडोर भी है, दूजा भी है। गुरु नानक यूनीवर्सिटी तो पिछे फिजिकल एजुकेशन वाला हैड आया, उन्होंने मैं दिखाया, वो हैरान हो गया, कहता किसी ग्रुप कोल किसी होर कॉलेज इंस्टीट्यूशन च ये कुछ नहीं है जो तुहाडे कोल हैगा है, ये साडे कोल कोई इहो जिहे होर कॉलेज नहीं है जिहदे फ्री बस सर्विस होवे, जिहड़े मर्जी रूट तो आउंदा होवे फ्री बस सर्विस होवे। ये साडे बड़े प्लस पॉइंट्स ने, इनू हाईलाइट करना चाहिए, इनकैश करने की लोड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। I request if any principal would like to some information or share his views, please come forward. गुरप्रीत सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सर ने MD सर ने काफ़ी एक्सप्लेन किया, शर्मा सर ने जिन्ने भी उन्होंने कोर्सेज सीगे जो पहला थोड़ा बहुत नहीं दसिया, क्योंकि सब तो इंपोर्टेंट होंगी है एलिजिबिलिटी सर ने डिफाइन की है। चलो थोड़ा जहा मौका मिले स्टेज पे, सर ने एक गल कही सी भी MD सर ने रिक्वेस्ट की भी कॉलेज वाइज पता होना चाहिए तुहानूं भी कित्थे किहड़ा कोर्स चलदा पिया। सिमिलरली जिहड़ा साडे कॉलेज का नाम आ वो बहुतिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर नहीं होंदा। नॉर्मली असीं ये कहते हैं सेंट सोल्जर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी। बेसिकली ऑन डॉक्यूमेंट्स
साडा नाम है सैन सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इट इज़ अ इंटीग्रेटेड कैंपस। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆ, इंजीनियरिंग तो है ही है, इंजीनियरिंग के नाल मैडिकल भी है लाइक पैरामैडिकल, और मैनेजमेंट कोर्सिज भी है। बीटेक इन CSE मैकेनिकल, EC इलैक्ट्रिकल, MBA, BSc IT, BSc डायलिसिस टेक्नोलॉजी, BSc फिजियोथेरेपी, नाउ वी आर अप्लाइंग। सो इस तो अलावा अदर कोर्सिज BSc MLS, MSc MLS बायोकेमिस्ट्री। सो सारे मेरा ख्याल ये पता वा भी इंजीनियरिंग एलिजिबिलिटी +2 नॉन मेडिकल, MBA की एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, BSc IT +2 इन एनी स्ट्रीम, BSc MLS +2 साइंस मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, MSc बायोकेमिस्ट्री ग्रेजुएशन इन BSc मेडिकल लैब साइंसेस। सो अगेन आई कंग्रेचुलेट टू MD सर, बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव उन्होंने मेरी टेन्योर दे विच लास्ट 13-14 ईयर सर ने जो इनिशिएटिव आ लिया, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ एक छत के थले इकट्ठा किया, और सारिਆਂ ਨੂੰ ये पता होना चाहिए मेरे ख्याल दे विच भी किहड़े कॉलेज दे विच किहड़ा कोर्स चलदा, उत्थे प्रिंसीपल कौन आ, तुहाडा कंटैक्ट नंबर की हैगा, और एडमिशन कोआर्डीनेटर किहड़ा उस कॉलेज दे विच, और जिन्नी इत्थे फैकल्टी बैठी हुई है मैनूं नहीं लगता भी मैं भी सारिਆਂ ਨੂੰ जानदा होवां। सो एक दूजे विच इंटरैक्शन जिहड़ी बहुत जरूरी सीगी। सो मैनूं लगदा भी लास्ट ईयर असीं जो साडी एडमिशन सीगी 5500 सीगी, और मैं लगदा भी 7000 जिहड़ी एडमिशन होनी चाहिए आ, इंक्लूडिंग अपनी जिहड़ी कह लो भी नियर अबाउट 100 किलोमीटर प्लस जिहड़ियां अदर स्टेट्स नूं तुसीं भुल नहीं जाना। J&K आ साडे कोल, बिहार आ साडे कोल, हिमाचल आ साडे कोल। सो उत्थों भी असीं अपनी एडमिशन टारगेट पूरे करने हैं। साडे काफ़ी सारे ऑफिस कश्मीर दे विच भी आ, और असीं इत्थे नियर अबाउट सर दी परमिशन दे नाल नवे ऑफिस खोलण लगे हैं, और उहदे बारे तुहानूं असीं कन्वे करांगे। थैंक यू। I request if any other principal, so please come forward. मुझे भी एक अच्छा मौका मिला है आप लोगों से बात करने का, और मेरे ख्याल से बड़ा रेयर ओकेजन है जब ऐसे हम लोग सब साथ बैठे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं होटल मैनेजमेंट की। मैं 2 मिनट आपका लूँगा। एक हमारा कोर्स है BSc HNHE, थोड़ा सा देखिए और बहुत क्लियर हो जाएगा। इंसेंटिव्स बिल्कुल क्लियर है, और वैसे भी शायद होटल मैनेजमेंट अपने टाइमली इंसेंटिव देने के लिए जाना ही जाता है, जो हमारे साथ डील करते हैं उनको पता है। तो जो HNHE कोर्स है, ये पहला ऐसा कोर्स था जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर आया, और ये 4 साल का डिग्री कोर्स है जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का अगर आप नाम लेंगे, क्योंकि ये हाईलाइट नहीं हो पाया लास्ट ईयर क्योंकि बहुत लेट में एफिलिएशन मिला, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तो जो BSc HNHE, BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा सा गलती हो गई इसमें, कुछ मिसप्रिंट हो गया है, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है उसका, और वो उसमें एग्जिट ऑप्शन है जूनियर एजुकेशन पॉलिसी में है। इनकेस कोई बच्चा किसी कारण से 1 साल बाद उस कोर्स को छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन BSc, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर किसी कारण से 2 साल बाद उसको वो छोड़ना पड़ता है तो ही विल गेट अ डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। 3 साल बाद अगर वो फिर भी छोड़ना चाहता है 3 साल करके, ही विल गेट अ डिग्री, और अगर वो 4 साल कंटिन्यू करता है ही विल गेट अ ऑनर्स डिग्री। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने इसको लागू किया था, और हमारे पास ये कोर्स है जो सबसे पहला कोर्स है BSc HNHE हॉस्पिटल इन होटल एडमिनिस्ट्रेशन। एक और बात बताऊंगा, हमारे पास मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट है, जो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आपने अगर की है, वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, लॉ किया है आपने इंजीनियरिंग की है, अगर आपने मास्टर्स करना है, किसी ने बाहर जाने का किसी के पास ऑप्शन है, तो वो मास्टर इन होटल मैनेजमेंट किसी भी स्ट्रीम के साथ अगर उसने ग्रेजुएशन किया है वो उसको कर सकता है। इवन अगर आपने स्पोर्ट्स से BPA डिबेट भी किया है तो वो भी उसको कर सकता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरे लास्ट पॉइंट है, जो सर्टिफिकेट कोर्स जो ITI लिखा हुआ है, डिप्लोमा कोर्सेज जो हम रन कर रहे हैं, दैट इज आफ्टर 10th। तो 10वीं के बाद अगर कोई बच्चा कोई कोर्स करना चाह रहा है तो 1 ईयर का एक डिप्लोमा होता है, दैट इज इन कुकिंग। उसको इजी लैंग्वेज में मैंने सर से रिक्वेस्ट करी थी कि उसमें फूड प्रोडक्शन लिखा है, हम उसको कुकिंग कर देंगे। कुकिंग, बेकिंग, फ्रंट ऑफिस रिसेप्शन, जो रिसेप्शन का कोर्स होता है, एंड 4th वन इज F&B सर्विस, जो होस्टेसेस या जो सर्वर्स आप देखते हैं।
तो ITI को थोड़ा हाईलाइट करिए। वैसे ITI हमारी सीट सबसे पहले बढ़ जाती है। वी हैव 96 सीट्स और लास्ट ईयर हमने 96 के अंगेज 132 एडमिशंस किए थे, फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं बच्चे। तो ITI हमारी बढ़ जाती है। GNU वाले से रिलेटेड अभी जैसे भी सर ने रिक्वेस्ट करी थी और उस पर काम करना शुरू भी हो गया है। तो जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कॉलेज के एडमिशन कोऑर्डिनेटर का नंबर भी मैं चाहूँगा सर ऐड कर दीजिएगा उस पर, प्रिंसिपल के साथ साथ। तो जब भी आपको कोई डाउट होता है होटल मैनेजमेंट कोर्स से रिलेटेड, काइंडली गिव अस अ रिंग, हम आपको उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। If any other principal would like to say a few words. Kirpal sir, would you like to say something? सब तो पहले तो मैं धन्यवाद करांगा अपने MD सर का, शर्मा जी का, जिन्होंने बड़ा ही एलैबोरेटिव तरीके नाल सानू ਵੱਖ-ਵੱਖ कोर्सेज जो चल रहे साढ़े ਵੱਖ-ਵੱਖ कॉलेज उन्होंने बारे दस्या है। तो हर किसी की कोशिश होंगी है भी किसी का डाउट कोई ना रह जाए। तो जिस तरह सर ने रिक्वेस्ट भी की शर्मा सर ने कि उन्होंने डायरैक्टर साहब के प्रिंसीपल साहब के नाम पाते जान, कोऑर्डिनेटर का नाम पाते जान, जो किसी की फिर भी कुआरी हैगी आ तो वो अं मौके से दूर करने की कोशिश करांगे। क्योंकि हर जो किसी भी कॉलेज में कोर्स चलते हैं उन्होंने कोई ना कोई डीप पॉइंट्स होंगे आ, आपां उन्होंने कवर करने की कोशिश करांगे। जिस तरह गल की सर ने भी अपना सर्टिफिकेट 1 साल का कोर्स किसी पूरा कर लिया तो सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, किसी 2 साल का कर लिया। ये जो प्रथा हैगी है डिप्लोमा में भी हैगी है, भी C वॉक कहते हैं, D वॉक भी कहते हैं, लेकिन ये कंडीशन होती है भी वो फर्स्ट ईयर का पूरा पास होना चाहिए, सैकेंड ईयर का पूरा पास होना चाहिए, दैन ही विल गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन चंडीगढ़। इस तरह निक्की निक्की गल्लां हैगियां। जे मैं लीड की गल करना, लेटर एंट्री की मैं गल करना, उहदे विच +2 मैडिकल, नॉन मैडिकल, आर्ट्स नहीं कवर कर सकते, वोकेशनल जिन्हें की है, जां किसी ने साइंस ने की है, जां किसी ने 2 साल की ITI की है, ही इज एलिजिबल इन लेटर एंट्री। डिप्लोमा 3 साल का मिलेगा लेकिन लाने 2 साल पैणगे। इस तरह असी मैं अपने वालों, अपने स्टाफ वालों, चेयरमैन सर का, चेयरपर्सन मैडम का, तो खास कर MD सर का, तो सारे जो साढ़े कलीग बैठे आ, साढ़े जो स्टाफ मैंबरस बैठे आ, उन्होंने धन्यवाद करदा कि बड़ी पेशेंस अज सुनिया। तो इदां दी रिवायतां कंटिन्यू चलनी चाहिए, क्योंकि जो यूनीफॉर्म डाटा सर्व किया या यूनीफॉर्म चीज़ां डिस्ट्रीब्यूट किसी करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी उन्नी ही बढ़ती है। तो सानू पूरी आस आ भी असीं ये टारगेट अचीव भी करांगे तो इहनूं बाद सैलीब्रेट भी करांगे। थैंक यू। Thank you so much. So with that, I wrap up this session. So thank you all for sparing your valuable time and best wishes for this next admission session. Thank you all. सेंट सोल्जर ग्रुप इंस्टीट्यूशन लॉ कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ बहुत सारे प्रिंसीपल पहुंचे, जिन्हें भी इस कॉलेज के प्रिंसीपल सन ਅੱਜ इस कैरियर सैशन ਨੂੰ अटेंड करने ਲਈ पहुंचे, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ फैकल्टी मैंबर पहुंचे और उन्होंने बड़े ही ध्यान ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ और कहा कि ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ सेंट सोल्जर ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ हर जगह ਤੇ हर कंट्री ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਡਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਖਾਸ कैरियर काउंसलिंग सैशन से बहुत वधिया रहा तो हर एक ने एक दूजे नाल सहयोग भी दिता। तुसीं बने रहो सेंट सोल्जर टाइम्स नाल। खास स्टोरी देखने लिए कैमरामैन अनुराग दे नाल कोमल।